How did your journey this thing begin? आपको कब ऐसे ये लगा कि you want to be a master chef? बताते नहीं थे कि क्या कैसे क्या करना है। How do you balance that, traditional Indian flavors while innovating this modern dishes? ये आप कैसे करते हो सर? सबके अपने अपने स्किल होती है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। हाँ, आपने जर्नी शुरू करी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे you must have seen the ups and downs. What was your defining moment? होटल मैनेजमेंट का कॉलेज था, उसमें शेफ की तो बात नहीं थी। Which one is your to-do list जो आपको हमेशा याद है? मैं कहूँगा Is there a dish which you have created that feels like a piece of your own identity? टीवी पे जब पहली बार एपिसोड जब किया जो डिश बनी थी, दैट वाज शाम सवेरा। Namaskar, Vanakkam, Sat Shri Akal, Kem Jo Saroj, Australia, Kyaku, Maharaj. My name is RJ Dhruv, and today we are honored to have the legend, the king, Sanjeev Kapoor on our show with us. Thank you so much, sir, for giving us your time. And Thank you, Dhruv. Thank you. Australia love you so much. First of all, very honest. Thank you. Thank you very much. बहुत लोगों ने आपकी जर्नी देखी है. Many people get inspired from you. Many people have been watching you for so long time. मेरा पहला क्वेश्चन, स्पेशली द लिसनर्स क्वेश्चन है, how did your journey this thing begin? आपको कब ऐसे ये लगा कि you want to be a chef and you want to be a master chef, the legend Sanjeev Kapoor right now. How did that journey started? जर्नी सबकी वैसे ही शुरू होती है, स्टार्टिंग से शुरू होती है। इट इज नॉट समथिंग दैट यू थिंक कि आप ऐसे बनेंगे, ये करेंगे। एवरीवन हैज ड्रीम्स, बट यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। ओनली थिंग इज I just wanted to make sure that I just wanted to do something which was not run of the mill. When I say run of the mill, at that time run of the mill I would say was कि अच्छी पढ़ाई आती है तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। मैं तो कुछ अलग करूँगा, एंड अब कुछ अलग करने वाले तो फिर तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होगे तभी करोगे। ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी you have to do something which is different, and that's how I thought of this. That fortunately food was, अब सबके लिए food I think is around us right from childhood. It's not that anyone can say कि I did not know food. You are eating 3 times a day, so you know, right? Yeah. It's just that, and you can also not say that I don't know food, I don't like food. If you are eating it, there's nothing. You can't say that I don't like oxygen, right? You will stop to survive. So you have to like it. So same is the case with food. So when I started this journey, I realized that there were few issues that were there. Especially in India at that time, people were not sharing secrets. Okay. तो सिखाते नहीं थे, बताते नहीं थे कि क्या कैसे क्या करना है। So it was little difficult. So I decided कि अगर मुझे कुछ भी आ जाएगा, I will share that knowledge as quickly as possible. And that's how I started. So if the TV show that I started, Khana Khazana. Yeah. Before that also, I used to teach people also wherever I worked. So I worked close to Melbourne also. I worked in New Zealand. I was there for a few years there. Okay. तो मैं वहाँ पर काम करता था, लेकिन साथ में मैं Saturday Sunday को I used to teach also. I used to teach people how to cook Indian food. In New Zealand I used to do that. Working in India also, working as a chef also, I would teach people how to cook. So sharing my knowledge helped me to reach more people, and that's how when TV started, I was already not only working as a chef, not only I was good as a chef, but I was a good teacher also.
सो उस वजह से और फायदा हो गया। लेकिन आपकी टीचिंग ने बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाई है, आई ऑलवेज से दैट। तो देखिए, कोई भी अगर आप चीज करते हैं, when you are the first one who starts that, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोग उसको फॉलो करेंगे। सो लीडरशिप का ये फायदा होता है। लीडरशिप कभी भी लीडर अकेला नहीं होता। लीडर तभी लीडर बन सकता है जब बहुत सारे फॉलोअर्स हो। तो आई एम ग्लैड कि आज बहुत, जैसे एज यू सेड दैट, बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं, बहुत सारे लोग एक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट this field, this has grown so much, this has changed many lives, and I was just talking to one of the first chefs who quit his job and started working with me. आज उसका बर्थडे है तो मैं उसको विश करने के लिए मैं बात कर रहा था, तो शेफ हरपाल सिंह शोकी। सो हरपाल से मैं बात कर रहा था, तो I was remembering that when he came and joined me, our company, तो उस समय मतलब कंपनी तो क्या ही थी, मतलब छोटा सा सब कुछ, but we used to have so much fun, and now when I see him, I feel so happy that he's doing so well now, and not just Harpal, many other chefs and many people at home also. It's not just instead of celebrity chef, there are many people who have changed their lives Yes. with the food, and I'm grateful that it has worked out like this. Sir, when you make any recipe, शायद आपकी हर रेसिपी हर जगह फेमस है। इवन इन द फ्लाइट्स, अगर हम बोले कि स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया की कोई भी फ्लाइट्स, यू नो, सिंगापुर एयरलाइंस स्पेशली highlights the dish by Sanjeev Kapoor and makes us proud, you know, when we see that thing. So how do you balance that, you know, traditional Indian flavors while innovating these modern dishes? ये आप कैसे करते हो सर? सबके अपने अपने स्किल होती है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। उसके अंदर आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, और उसके साथ में फिर आप बोल्डली होके, इट्स लाइक पेंटिंग अ कैनवस। आप पहले विजुअलाइज करते हो, आप सोचते हो कि ऐसे कुछ करेंगे, फिर आप ट्राई करते हो, फिर आप हिम्मत करके कुछ नया करते हो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ lots of things. It's a combination of lots of things. Then once you do more of it, तो आपको सारे शॉट लगने शुरू हो जाते हैं। पहले तो प्लेबुक के हिसाब से होता है, फिर वो हेलीकॉप्टर शॉट भी धोनी जैसे लगने शुरू हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे भी लगते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे भी स्क्वायर कट लगते हैं, तो सब अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज यू प्रैक्टिस सो मच, देन आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो शायद आपने जर्नी शुरू करी होगी, वहाँ पे भी बहुत सारे, you know, you must have seen the ups and downs. What was your defining moment, you know, in your career that changed everything for you? See, कभी ऐसा नहीं होता कि एक चीज से दुनिया बदल। कभी ऐसा होता है कि ये डिसीजन कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनूंगा, that can be the defining moment. It is कि आपने जब कॉलेज के अंदर गए तो होटल मैनेजमेंट का कॉलेज था, उसमें शेफ की तो बात नहीं थी। आई कुड हैव बीन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बट द डिसीजन टू बी इन द किचन, दैट कुड बी द डिफाइनिंग मोमेंट, और द फर्स्ट जॉब दैट इज देयर, दैट कुड बी द डिफाइनिंग मोमेंट, और व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ माय होम एंड वर्क इन Banaras could be defining moment, or when I decided to work in New Zealand could be defining moment, or when I came back to India, New Zealand छोड़ के कौन आ? सबने बोला न्यूजीलैंड में तो आप चलेगा, अब तो वापस ही नहीं। मुझे लगा नहीं, इंडिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इज मच बिगर अपॉर्चुनिटी। मे बी दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट। और व्हेन ZTV launched, that could be the defining moment. So it's difficult to say which is I think the most defining moment is the day that you are born. If you're not born, nothing would be possible. तो इसके लिए तो parents are more responsible that you're born. That is the defining moment. The day I was born is the day, and that is the defining moment.
तो आपकी भी कोई मनपसंद एक डिश तो होगी व्हिच ऑलवेज टेक्स यू बैक टू योर चाइल्डहुड और समथिंग एक ऑलवेज एक टू डू डिश होती है व्हिच वन इज योर टू डू डिश जो आपको हमेशा याद रहेगी और मेरी डिश और किड लव कि चलो पापा का जब आपके साथ से ये खाना चाहिए व्हिच इज दैट डिश? सो देखो दोनों अलग चीजें हैं, एक उनकी पसंद होगी, एक मेरी पसंद, राइट? हाँ सो माय ऐसी जो चीजें होती हैं वो नॉस्टैल्जिया होती हैं. द नॉस्टैल्जिया इज व्हाट यू हैव ग्रोन अप विद, राइट? थिंग्स दैट यू हैव ईट. So at that time when you are growing up, it's what your mom cooked for you. So मतलब जैसे हमारे उसके अंदर मैं कहूँगा पंजाबी कड़ी by my mom. I still enjoy that cooked by my mom or Punjabi kadi cooked by. But when my daughters, when they want it, it is about what they like to eat. उनको क्या अच्छा लगता है. एंड वो तो पंजाबी कड़ी नहीं होती, वो होता है, वो बिरयानी भी हो सकती है, वो लक्सा भी हो सकता है. It all depends on what they like. But largely, what you like is it's not only the food, it's the memory around that food. वो memory, वो nostalgia होता है. So for me, that nostalgia is more पंजाबी कड़ी, Sunday को मिलना, that is nostalgia. तो ये एक ऑडियंस का बहुत दिल से क्वेश्चन है, स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इज देयर अ डिश व्हिच यू हैव क्रिएटेड दैट फील्स लाइक अ पीस ऑफ योर ओन आइडेंटिटी? ये बहुत लोगों को जानना है. आई नो. आई थिंक जो आप करते हो, आप ऐसा तो नहीं कि कोई भी आप चीज करते हो वो दैट इज नॉट यू. बट आई थिंक इफ आई लुक बैक, जो मैंने पहली टीवी पे जब बार एपिसोड किया, तो बाय चांस जो डिश बनी थी दैट वाज शाम सवेरा. तो दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड नाउ आई थिंक 5-10 हज़ार रेस्टोरेंट्स में. आज सुबह ही किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा कि आपने शाम सवेरा को पेटेंट क्यों नहीं कराया? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जिंदगी में इतना मिला है, इतना सब कुछ मिला है, जो हमने बहुतों की चीज़ें, ये हवा पानी कोई अगर पेटेंट करा ले और हमें ना मिले सांस लेने के लिए, तो खाने में जो मेरा चीज़ें अगर मैंने कुछ क्रिएट किया है तो वो मुझे पेटेंट कराने की ज़रूरत नहीं. आई वुड शेयर इट बिकॉज दैट इज़ हु आई एम. मैं जब मुझे सब कुछ इसीलिए मिला क्योंकि मैंने शेयर करना सीखा. तो इन सम सेंस उसकी जो क्रिएशन हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि उस समय जैसे वेजिटेरियन खा रहे हैं पालक पनीर, राइट? हाँ जी. तो शाम सवेरा इज एक्चुअली पालक पनीर बट कोफ्ता फॉर्म में, तो थोड़ा सा इनोवेशन हो गया. फिर मुझे लगा कि उस समय ना मैं आई वाज डूइंग फॉर सम मैगजीन, उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे तिरंगा कोई रेसिपी मांगी. तो मैंने फिर मैंने कहा अच्छा, अगर ये पालक पनीर है, इसको अगर ऐसा कोफ्ता में बनाया जाए और उसको एक ऑरेंज ग्रेवी के अंदर दिया जाए, तो तीनों कलर आ गए, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज, जो हमारे तिरंगा के कलर. तो इट्स एट दैट टाइम इट वाज अ मॉडर्न इंडियन डिश, अगर बोलें कि इंडियन भी और मॉडर्न भी, ट्रू टू इट्स रूट्स थी. एंड इवन टुडे इट स्टैंड्स. सी, कोई भी डिश जो है, इट हैज टू स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम. इट हैज टू स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम. मतलब अब वो मैंने जब क्रिएट करी थी, वो अब हो गए हैं 34 years ago I did that on TV. So that is, and still it is very relevant. It's very popular in so many restaurants that I go to, and it probably reached a stage and it will where people will not remember who created this dish, and that's the true hallmark of a dish. किसने क्रिएट किया से कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया खा रही है. that is how important it is. किसने गोलगप्पे क्रिएट किए थे बताओ? That's true. I agree. फर्क नहीं पड़ता किसने कुल्फी क्रिएट करी, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसने करी थी. But do we enjoy it? Of course we enjoy it, right? So that is important.
that what is your contribution. आप इस धरती पे आए हो और आपकी जो contribution है, that is beyond you. That is not just limited कि ये patent not ये कोई क्विज बुक के लिए नहीं है. दिस इज आप जो कुछ करते हो ह्यूमैनिटी के लिए करते हो, मैनकाइंड के लिए करते हो. उससे बड़ी चीज अब मैं कोई चांद और सितारा तो मैं नहीं लगा सकता. वो तो हमें मिला है, हमें विरासत में मिला है. राइट, सूरज भी हमें विरासत में मिला है. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी. तो हम क्या दे सकते हैं? राइट, तो हमारे फील्ड का अगर हमने कुछ दिया है तो उससे और लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे ये खुशी नहीं है कि ओहो लोगों को पता होना चाहिए कि शाम सवेरा संजीव कपूर ने की. उससे मतलब नहीं है. शाम सवेरा कितने लोग खा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सर, एक और क्वेश्चन है. फॉर समवन हु इज स्कैर्ड ऑफ कुकिंग, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड easiest dish they can cook to build their confidence? देखो, अगर किसी को खाना बनाने से डर लगता है तो सबसे पहले तो एक काम करे, खाना बनाए मत, सिर्फ कहे आई कैन कुक. एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स जो लोग मिले करीब 2 हफ्ते तक सिर्फ ये कहना है. तो ये स्टिल नॉट कुकिंग, कोई गलत तो होगा नहीं. आपको सिर्फ ये कहना है कि आई कैन कुक, आई कैन कुक, आई कैन कुक. जस्ट डू दिस फॉर 2 weeks. You are not cooking again. Somebody who's scared of cooking, just do this. उसके बाद whatever you decide to cook, you'll cook और वो डिश ठीक होगी. ये मेरा आशीर्वाद. चलो सर, बात करते हैं अभी आपने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में आपने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. वी कैन सी दैट इन कोल्स एंड एवरीवेयर. Yes. उसके बारे में स्पेशली टू द लिसनर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुछ शेयर करना चाहेंगे? Sure. So हमने अर्थ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं. कोल्स के साथ में ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया दे आर अवेलेबल. और उसके अंदर अभी जो हमने फर्स्ट रेंज लॉन्च करी, उसके अंदर पिकल्स हैं, मैरिनेड्स हैं, पेस्ट हैं, सॉसेज हैं, खिचड़ी है. बहुत इंटरेस्टिंग खिचड़ी, बट खिचड़ी बहुत कमाल की है. हमने मिलेट्स भी उसके अंदर डाले हैं, हाई प्रोटीन उसको रखा है, वेरी हेल्दी खिचड़ी. जितनी चीज़ें हैं, कोई कलर, कोई प्रिजर्वेटिव उसके अंदर नहीं है. तो उसमें हमने उस तरह से उसको बनाया है. और अब हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं. एंड वो बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर. फिर आऊँगा मेलबर्न, ज़रूर मिलूंगा मैं आपसे ज़रूर. यस सर, 100%. अर्थ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. एंड जितने लिसनर्स हैं, अगर उन्होंने ट्राई नहीं करें तो डेफिनेटली गो एंड ट्राई. क्योंकि और ना सिर्फ मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ जो इंडियंस हैं वो ट्राई करके खाएं, बट अपने जो और आसपास के जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं. बिकॉज मेरा मानना ये है कि इंडियन जो खाना है वो इतना स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है, बट जो लोग ज़्यादा खाना पता होता है ना लोगों को इंडिया का, वो रेस्टोरेंट स्टाइल पता होता है. तो हमारे खाने की बहुत बढ़िया डेप्थ है. तो इसलिए अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को जो नॉन इंडियंस हैं उनके साथ भी शेयर करें, ये ट्राई करें अर्थ के प्रोडक्ट्स. सर, वन लास्ट मैसेज आप हमारे सारे लिसनर्स एंड ऑल दोस पीपल हु लव यू इन एंटायर ऑस्ट्रेलिया, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मेलबर्न में, हर जगह पे आपको जो लोग प्यार करते हैं, उनके लिए आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? वन मैसेज. बस यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट एवरीवन हैज गिवन मी. आई एम बिकॉज ऑफ ऑल द लव. जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. और एक चीज़ सबके साथ बहुत सालों से शेयर करता हूँ, अभी भी करता हूँ. खाना एक ऐसी चीज़ है, कहीं पे भी आप खाएं, किसी ने भी खाना बनाए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा खाना आपको मिले, तो जो भी खा रहे हैं खाना, उसमें ये देखें कि क्या अच्छा है.
और उस चीज को एम्पलीफाई करें, उसको हाईलाइट करें, और जिसने वो खाना बनाया अगर वहां तक आप पहुंच सकते हैं, घर में तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं, तो उसकी तारीफ करें। खाना जो भी खाएं उसमें ये ढूंढे क्या अच्छा है, क्या खराब है। नहीं, अगर कुछ खराब है तो उसको इग्नोर करें, जो अच्छा है उसको हाईलाइट करें, उसको और बनाएं, और जो बना रहा है उसको बनाएं कि कितना अच्छा किया है। आपको अच्छा खाना और मिलेगा, ये गारंटी है। सर, आपको लोग वापस टीवी स्क्रीन पे कब देख सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे? देखिए, मैं स्क्रीन पे हमेशा होता हूँ। हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है हमारा है, Yes. सोशल मीडिया जितने हैं सब पे उसमें है। हमारा एक्चुअली टीवी चैनल एक है पूरा का पूरा, फूड हमारा टीवी चैनल है। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में नहीं हम उसको कैरी करते हैं, बट यूएस, कनाडा, मिडल ईस्ट बहुत जगह वो हमारा टीवी चैनल जाता है। बट उसको आप We will make sure कि हम आपके सारे एपिसोड्स लोगों तक पहुंचाएंगे। फूड आप डिजिटल वे में जरूर देख सकते हैं। Promise, sir. Thank you so much, sir, for being with us. It was really honor to have you. And जल्दी मिलेंगे हम जीबीपी ऑस्ट्रेलिया आएंगे। Thank you so much Thank again you. for your time, sir. Thank you. Thank you. Wish you all the best. Thank you. Thank you.